یا اللہ تیرے ذکر سے ہی دن اپنا ہو تمام، بچوں کی شام، بچوں کی شام۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ۔ تو پیارے پیارے بچوں اور مدنی چینل کے ناظرین، ہم آپ کو اپنے پروگرام بچوں کی شام میں خوش آمدید کہتے ہیں، ویلکم کہتے ہیں، مرحبا مرحبا کہتے ہیں۔ پیارے بچوں کیسے ہیں آپ سب، ٹھیک ہیں؟ ماشاء اللہ۔ تو مدنی چینل کے ناظرین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہمارا یہ پروگرام بچوں کی شام ہمارے ان دوستوں کے لیے ہوتا ہے جو کچھ سیکھنا چاہتے ہیں، جو امیزنگ انفارمیشن حاصل کرنا چاہتے ہیں، اور اس کے لیے ہمارے پاس بہت اچھے اچھے سیگمنٹس موجود ہیں۔ تو آئیں اپنے پہلے سیگمنٹ کی جانب بڑھتے ہیں، جس کا نام ہے تلاوت قرآن پاک۔ بچوں کی شام۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں انس بھائی، آپ ٹھیک ہیں؟ جی الحمدللہ رب العالمین علی کل حال، آپ کیسے ہیں؟ الحمدللہ رب العالمین علی کل حال۔ انس بھائی، آج آپ ہمارے مدنی چینل کے ناظرین کو کون سی تلاوت سنا رہے ہیں؟ سورۃ الغاشیہ۔ ماشاء اللہ۔ جی انس بھائی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ هل أتاك حديث الغاشية، وجوه يومئذ خاشعة، عاملة ناصبة، تصلى نارا حامية، تسقى من عين آنية، ليس لهم طعام إلا من ضريع، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ هل أتاك حديث الغاشية، وجوه يومئذ خاشعة،
عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني لا يسمن ولا يغني من جوع وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنة عالية لسعيها راضية في جنة عالية صدق الله العظيم सुभान अल्लाह, माशा अल्लाह। तो प्यारे प्यारे बच्चों और मदनी चैनल के नाज़रीन, और हमारे सोशल मीडिया के लिंक मैं आपको बताता चलूँ, हमारे फेसबुक पर, ट्विटर पर, इंस्टाग्राम पर और हमारे यूट्यूब पेज पे हमारा जो है किड्स मदनी चैनल के नाम से हमारा अकाउंट है, तो आप उस पर हमें फीडबैक्स दे सकते हैं। तो आए अपने अगले सेगमेंट की जानिब बढ़ते हैं, जिसका नाम है नाते रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बच्चों की शाम। माशा अल्लाह। तो मदनी चैनल के नाज़रीन, आज नात भी हमारे अनस भाई सुनाएंगे। तो अनस भाई, आज आप हमें और मदनी चैनल के नाज़रीन को कौन सी नात सुना रहे हैं? ऐसा तुझे खालिक ने तरहदार बनाया। माशा अल्लाह, सुभान अल्लाह। जी अनस भाई। सल्लल्लाहु अलैका या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह सल्लल्लाहु अलैका या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। ऐसा तुझे खालिक ने तरहदार बनाया, ऐसा तुझे खालिक ने तरहदार बनाया।
بنایا ایسا تجھے خالق نے ترغدار بنایا ایسا تجھے خالق نے ترغدار بنایا یوسف کو تیرا طالب دیدار بنایا یوسف کو تیرا طالب دیدار بنایا کونین بنائے گئے سرکار کی خاطر کونین بنائے گئے سرکار کی خاطر کونین بنائے گئے سرکار کی خاطر کونین کی خاطر تمہیں سرکار بنایا کونین کی خاطر تمہیں سرکار بنایا کون جی تمہیں دی اپنے خزانوں کی خدا نے کون جی تمہیں دی اپنے خزانوں کی خدا نے محبوب کیا مالک کو مختار بنایا محبوب کیا مالک کو مختار بنایا بے یاروں مددگار جنہیں کوئی نہ پوچھے بے یاروں مددگار جنہیں کوئی نہ پوچھے بے یاروں مددگار جنہیں کوئی نہ پوچھے ایسو کا تجھے یاروں مددگار بنایا ایسو کا تجھے یاروں مددگار بنایا یوسف کو تیرا طالب دیدار بنایا ایسا تجھے خالق نے ترغدار
बनाया। सुभान अल्लाह, माशा अल्लाह। अनस भाई आपने बहुत अच्छे से नात पढ़ी, माशा अल्लाह। मदनी चैनल के नाज़रीन, ये थी नात रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अनस भाई अल्लाह पाक आपको मज़ीद से मज़ीद बरकतें अता फ़रमाए। तो मदनी चैनल के नाज़रीन, बढ़ते अपने अगले सेगमेंट की जानिब, जिसका नाम है आए अरबी सीखें। बच्चों की शाम। प्यारे बच्चों और मदनी चैनल के नाजरीन, जैसा कि आपको मालूम है कि इस सेगमेंट में हम रोज़ाना कुछ न कुछ नए अरबी अल्फाज सीखते हैं। क्या सीखते हैं? अरबी अल्फाज सीखते हैं जी। तो प्यारे बच्चों, आज भी हम 3 अरबी अल्फाज सीखेंगे जो ड्राई फ्रूट्स हैं, जो हम सबको शायद बहुत शौक़ से पसंद होंगे। तो वो जब सीखेंगे तो तब हमको आपको बताएंगे, और इसके अलावा आगे जाके हम आपको जुमले भी सिखाएंगे और अरबी बोल चाल भी हम यहाँ पर इंशाअल्लाह शुरू करवाएंगे। तो चलें बढ़ते हैं आज के हमारे अरबी अल्फाजों की तरफ जी। प्यारे बच्चे, ये आपको क्या नज़र आ रहा है? पिस्ते। क्या है? पिस्ते। इसको अरबी में फुस्तुकुन कहते हैं। क्या कहते हैं? जी। ये आपको क्या नज़र आ रहे हैं? अखरोट। थोड़ा ज़ोर से बताए ना, पहचान तो रहे ना सारे, किस किस ने खाए? माशाअल्लाह। अखरोट को अरबी में जाउजुन कहते हैं। क्या कहते हैं? जाउजुन। और ये है किशमिश। क्या है? किशमिश। इसको अरबी में ज़बीबुन कहते हैं। क्या कहते हैं? ज़बीबुन। पिस्ते को अरबी में फुस्तुकुन कहते हैं। क्या कहते हैं? फुस्तुकुन। अखरोट को अरबी में जाउजुन कहते हैं। क्या कहते हैं? जाउजुन। और किशमिश को अरबी में ज़बीबुन कहते हैं। क्या कहते हैं? ज़बीबुन। जी, आप याद करें, आपसे पूछेंगे अभी हमारे हसन भाई आकर इंशाअल्लाह। पिस्ते को अरबी में फुस्तुकुन कहते हैं। क्या कहते हैं? फुस्तुकुन। अखरोट को अरबी में जाउजुन कहते हैं। क्या कहते हैं? जाउजुन। और किशमिश को अरबी में ज़बीबुन कहते हैं। क्या कहते हैं? ज़बीबुन। पिस्ते को अरबी में फुस्तुकुन कहते हैं। क्या कहते हैं? फुस्तुकुन। अखरोट को अरबी में जाउजुन कहते हैं। क्या कहते हैं? जाउजुन। और किशमिश को अरबी में ज़बीबुन कहते हैं। क्या कहते हैं? ज़बीबुन। इसको अरबी में क्या कहते हैं? फुस्तुकुन। क्या कहते हैं? फुस्तुकुन। फुस्तुकुन। क्या कहते हैं? जी, शाबाश। इसको क्या कहते हैं अरबी में? जाउजुन। और इसको क्या कहते हैं? ज़बीबुन। ज़बीबुन। पिस्ते को अरबी में फुस्तुकुन कहते हैं। क्या कहते हैं? फुस्तुकुन। अखरोट को अरबी में जाउजुन कहते हैं। क्या कहते हैं? जाउजुन। और किशमिश को अरबी में ज़बीबुन कहते हैं। क्या कहते हैं? ज़बीबुन। पिस्ते को अरबी में फुस्तुकुन कहते हैं। क्या कहते हैं? फुस्तुकुन। किशमिश को अरबी में ज़बीबुन कहते हैं। क्या कहते हैं? और अखरोट को अरबी में जाउजुन कहते हैं। क्या कहते हैं? जाउजुन। पिस्ते को अरबी में क्या कहते हैं? फुस्तुकुन। फुस्तुकुन। थोड़ा जोर से ना, फुस्तुकुन जी। अखरोट को क्या कहते हैं? जाउजुन। और किशमिश को ज़बीबुन। जी। तो किस किस को याद हुआ? 3 अल्फाज था, आसान आसान। वाह, माशाअल्लाह। आपको याद हुआ? चले पूछते हैं। चले, कौन बताएगा कि पिस्ते को अरबी में क्या कहते हैं? आप बताएंगे? खड़े हों, अपना नाम बताएं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम अहमद रज़ा है। फुस्तुकुन। माशाअल्लाह। फुस्तुकुन किसको? किशमिश को कहते हैं ना। फिर पिस्ते को कहते हैं। अहमद रज़ा भाई का जवाब दुरुस्त है। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। चले, कौन बताएगा कि अखरोट को अरबी में क्या कहते हैं? माशाअल्लाह, शाबाश। चले, इनसे पूछते हैं। खड़े हों, अपना नाम बताएं। मेरा नाम हारिस है। माशाअल्लाह। हारिस भाई, अखरोट को अरबी में क्या कहते हैं? जाउजुन। जाउजुन कहते हैं अखरोट को। पक्का? देख लो, फुस्तुकुन तो नहीं कहते हैं। नहीं, वापस जवाब दें। अखरोट को क्या कहते हैं? जाउजुन। जाउजुन कहते हैं ना। चले, लास्ट टाइम जवाब दें। ये कंफ्यूज होगा। माशाअल्लाह, इन्होंने जवाब दुरुस्त दिया था। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। चले, अब कौन बताएगा कि किशमिश को अरबी में क्या कहते हैं? किशमिश को अरबी में क्या कहते हैं? आप बताएंगे? खड़े हो, अपना नाम बताएं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम अब्दुल मन्नान है। माशाअल्लाह। अब्दुल मन्नान भाई,
کشمش کو عربی میں زبیبن کہتے ہیں. کشمش کو عربی میں زبیبن کہتے ہیں. پستے کو دیکھیں بغیر بتانا ہے. پستے کو فستقن. فستقن. اخروٹ کو جوزن. عبد المنان بھائی کے تینوں جواب درست ہیں. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. چلو ہم ریوائز کر لیتے ہیں تاکہ مدنی چینل کے ناظرین کو بھی یاد ہو جائیں اور یہاں کے بچوں کو جن کو صحیح یاد نہیں ہوئے تو ان کو بھی پکے ہو جائیں. پستے کو عربی میں فستقن کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ فستقن. اخروٹ کو عربی میں جوزن کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ جوزن. اور کشمش کو عربی میں زبیبن کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ زبیبن. پستے کو عربی میں فستقن کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ فستقن. اخروٹ کو عربی میں جوزن کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ جوزن. اور کشمش کو عربی میں زبیبن کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ زبیبن. جی تو پیارے بچوں اور مدنی چینل کے ناظرین، یہ تھے آج کے ہمارے عربی الفاظ جو یہاں کے اکثر بچوں کو تو یاد ہو گئے ہوں گے اور کچھ نے ہمیں سنائے بھی. امید ہے کہ مدنی چینل کے ناظرین کو بھی یاد ہوئے ہوں گے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. جزاک اللہ حسن بھائی. مدنی چینل کے ناظرین یہ تھے ہمارے حسن بھائی، انہوں نے آپ کو 3 عربی کے الفاظ سکھائے. تو آئیں ہمارے پاس کالز موجود ہیں، تو آئیں کچھ کال شامل کرتے ہیں. جی پہلی کال. حسن بھائی مجھے عربی الفاظ آج کے یاد ہو گئے ہیں. پستہ کو عربی میں کہتے ہیں فسوقن اور اخروٹ کو کہتے ہیں جوزن. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. جی حسن بھائی. ماشاء اللہ آپ نے جواب دیا اور بہت جلدی جواب دے دیا. ماشاء اللہ. فستقن کہتے ہیں پستے کو عربی میں، اور جوزن جو آپ نے اخروٹ کا بتایا ماشاء اللہ آپ کا جواب درست تھا. تو آپ خود بھی مدنی چینل دیکھیں اور مدنی چینل دیکھنے کی دعوت عام کریں. بالخصوص یہ والا پروگرام آپ ضرور دیکھیں اور اپنے دوستوں اور رشتہ داروں کو بھی اس کی دعوت ضرور دیں. جزاک اللہ. ماشاء اللہ آپ نے کال کی، بہت بہت شکریہ. جی حسن بھائی آپ نے دیکھا کہ فوراً یاد کی اور منٹوں میں کال کر دی. جزاک اللہ آپ کا کال کرنے کے لیے. جی اگلی کال. میں زینب فاطمہ پاک پٹن شریف سے عرض کر رہی ہوں. بچوں کی شام مجھے بہت اچھا لگتا ہے. کڈز مدنی چینل ہمارا مدنی چینل. کڈز مدنی چینل ہمارا مدنی چینل. ماشاء اللہ. جزاک اللہ آپ کا کال کرنے کے لیے. خود بھی بچوں کی شام دیکھیں اور اپنے فرینڈز کو اپنے ریلیٹیوز کو بھی بچوں کی شام کی دعوت دیں. جی اگلی کال. میرا نام عالیہ تصور ہے. میں ڈھوکسوں میں رہتی ہوں. مجھے بچوں کی شام بہت اچھا لگتا ہے. اللہ تعالیٰ آپ کو مزید برکتیں عطا فرمائے. آمین آمین. جزاک اللہ خیرہ آپ نے کال کی. جی اگلی کال. جی آپ کا سیگمنٹ بہت اچھا لگتا ہے اور سب سے زیادہ اچھا آئیں عربی سیکھیں سیگمنٹ بہت اچھا ہے. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. حسن بھائی آپ کی تعریف ہوئی ہے، کچھ کہنا پسند کریں گے؟ ماشاء اللہ. جزاک اللہ آپ نے تعریف کی، بہت بہت شکریہ آپ کا. آپ خود بھی بچوں کی شام دیکھیں اور اپنے فرینڈز اور رشتہ داروں کو بھی اس کی دعوت ضرور دیں کہ یہ والا پروگرام ضرور دیکھا کریں تاکہ ان کو بھی بہت کچھ سیکھنے کو ملے. جزاک اللہ. ماشاء اللہ. جی اور کالز ہیں ہمارے پاس. مجھے آرٹ اینڈ گرافٹ بہت اچھا لگتا ہے اور دلچسپ کہانی. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. جی آپ خود بھی دیکھیں، دوسروں کو بھی اس کی دعوت دیں. اگلی کال. میرا نام رضا المرتضیٰ ہے. میں دمدم نگر حیدرآباد سے بات کر رہا ہوں. مجھے آپ کا سلسلہ بچوں کی شام بہت اچھا لگتا ہے. ماشاء اللہ. جزاک اللہ آپ نے تعریف کی، آپ کا بہت بہت شکریہ. جی اگلی کال. میرا نام ہے احمد ناظر الطوری. میں ہوں علی پور سے النور مدرسۃ المدینہ دعوت اسلام. مجھے بچوں کی شان بہت ہی پسند ہے. میں حفظ کر رہا ہوں. ماشاء اللہ حفظ کر رہے ہیں آپ، ہمیں دعاؤں میں یاد رکھیے گا. جزاک اللہ خیرہ آپ نے کال کی. جی تو آئیں اپنے اگلے سیگمنٹ کی جانب بڑھتے ہیں جس کا نام ہے ایک پیغام. بچوں کی شام. بسم اللہ الرحمن الرحیم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. پیارے پیارے بچوں اور مدنی چینل کے ناظرین، آج بچوں کی شام میں ایک پیغام کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں. کہا جاتا ہے ہمارا دین پورا کا پورا ادب ہے. جی ہاں پیارے بچوں، ایک بات ذہن میں رکھیں، با ادب با نصیب، بے ادب بے نصیب. جو لوگ جن چیزوں کے ادب اور احترام کا حکم ہمارے دین نے دیا ہے ان کا ادب اور احترام کرتے ہیں، تو یہ بات بالکل واضح سی ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو دنیا اور آخرت میں کامیابی عطا فرماتا ہے.
جو کامیاب ہونا چاہتا ہے اسے با ادب رہنا ضروری ہے۔ ادب کن کن چیزوں کا ہونا چاہیے؟ سب سے پہلے اللہ پاک، اس کے انبیاء اور فرشتوں کا ادب و احترام انتہائی ضروری ہے۔ انسان کبھی بھی اپنی گفتگو میں، بات چیت میں ایسے الفاظ استعمال نہ کرے جو ان مقدس ذاتوں کے ادب کے خلاف۔ یوں ہی اپنے والدین کا ادب اور احترام کرنا ہر مسلمان پر ضروری ہے۔ بالخصوص بچوں کے لیے والدین کا ادب و احترام کرنا انتہائی ضروری ہے۔ اسی طرح سے بزرگوں کا بھی ادب و احترام کرنا چاہیے۔ اگر کامیاب بننا چاہتے ہیں، بزرگوں کا ادب و احترام اپنے اوپر لازم کر لیجئے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کا مفہوم ہے کہ وہ ہم میں سے نہیں جو ہمارے بڑوں کا احترام نہیں کرتا اور چھوٹوں پر شفقت نہیں کرتا۔ بزرگوں کے آگے چلنا، ان کے سامنے زور زور سے باتیں کرنا، ان کے سامنے آپس میں مذاق مسخری سے کام لینا، ان کی کہی ہوئی بات پر عمل نہ کرنا، یہ ان کی بے ادبی میں شمار ہو سکتا ہے۔ یوں ہی جو دینی کتابیں آپ پڑھتے ہیں ان کا ادب اور احترام کرنا، جس مدرسے یا مسجد میں آپ تعلیم حاصل کرتے ہیں یا عبادت کرتے ہیں وہاں کوئی گندگی نہ کرنا، آلودگی نہ کرنا، کچرا نہ پھینکنا، یہ وہاں کے ادب اور احترام کا تقاضا ہوا کرتا ہے۔ پیارے بچوں، جو کتابیں ہم رکھتے ہیں، کبھی اپنی الماری کا جائزہ لیں تو آپ کے گھر میں جو کتابیں رکھی ہوں تھوڑا سا اس کا جائزہ لے لیں۔ آپ دیکھیں کہ ان کتابوں کی ترتیب کیا ہے، اور جو ترتیب میں آپ کو بتاتا ہوں وہ ترتیب ہے کتابوں کے ادب و احترام کی۔ کہا جاتا ہے کہ جو کتابوں کا ادب نہیں کرتا اسے علم بھی نہیں ملتا ہے، اور جو کتابوں کا ادب کرتا ہے اللہ پاک اسے کامیاب کر دیتا ہے۔ جو کتاب سے محبت کرتا ہے کتاب بھی اس سے محبت کرتی ہے اور وہ علم اسے فائدہ دیتا ہے۔ سب سے اوپر قرآن پاک رکھنا چاہیے، اس سے نیچے تفسیر رکھنی چاہیے، اس کے نیچے حدیث کی کتابیں ہونی چاہیے، اس کے نیچے فقہ کی کتابیں ہونی چاہیے، اس کے نیچے اخلاق، تصوف اور دیگر کتابیں رکھنی چاہیے۔ کچھ لوگ اور کتابوں کو قرآن کے اوپر رکھ دیتے ہیں، یہ قرآن پاک کے ادب اور احترام کے خلاف۔ یوں ہی کعبۃ اللہ کا ادب اور احترام کرنا، اس کی طرف تھوکنا نہیں چاہیے، کعبۃ اللہ کی طرف پاؤں نہیں کرنے چاہیے۔ کیپ اٹ ان یور مائنڈ، اپنے ذہن میں رکھیے کہ اگر کامیاب بننا چاہتے ہیں تو ان تمام چیزوں کا ادب اور احترام کرنا ضروری ہے۔ اللہ پاک ہمیں ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ پاک ہم سب کو اور بچوں کی شام پروگرام جو بچے یہاں پر دیکھ رہے ہیں، اللہ پاک ہم سب کو با ادب با نصیب بنائے، آمین، بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ بچوں کی شام۔ ماشاء اللہ۔ تو پیارے بچوں اور مدنی چینل کے ناظرین، یہ تھا ہمارا محمد یوسف مدنی بھائی کی طرف سے پیغام، ہم مبلغ دعوت اسلامی ہیں۔ تو آئیں پیارے بچوں اور مدنی چینل کے ناظرین، بڑھتے ہیں اپنے اگلے سیگمنٹ کی جانب جس کا نام ہے بچوں کا خبرنامہ۔ بچوں کی شام۔ بچوں، آج ہم آپ کو کیلے یعنی بنانا کے بارے میں جو ریسرچ رپورٹ ہے اس کے بارے میں بتائیں گے۔ ریسرچ رپورٹ کے مطابق ناشتے میں کیلے کا استعمال ہمیں دن بھر انرجیٹک اور فٹ رکھتا ہے۔ ناشتے میں کیلے کا استعمال ہمیں بے وقت بھوک سے بھی بچاتا ہے۔ بناناز میں بہت سارے نیوٹریشنز ہوتے ہیں، ان میں موجود پوٹیشیم، کیلشیم، میگنیشیم، آئرن، فولیٹ، B6، میگنیز اور بہت سارے دوسرے منرلز اور وائٹامنز موجود ہوتے ہیں۔ کیلے کے بہت سارے امیزنگ بینیفٹس ہیں۔ اس میں فائبر کافی مقدار میں پایا جاتا ہے، جس کی وجہ سے ہم بنانا کھا کر کافی دیر تک اپنا پیٹ جو ہے وہ فل محسوس کرتے ہیں۔ چھوٹے بچوں کے لیے بھی بنانا بہت فائدہ مند ہے کیونکہ یہ جلدی ڈائجسٹ ہو جاتا ہے۔ بچوں صرف گاجر سے ہی آئی سائٹ اسٹرانگ نہیں ہوتی، بلکہ اس میں موجود یعنی بنانا میں موجود وائٹامن اے ہے جو اس سے ہماری نظر بھی تیز ہوتی ہے۔ بچوں کیلا ہمارے برین کی پرفارمنس کو بھی مضبوط کرتا ہے۔ پوٹیشیم ہمارے لیے بہت اہم ہے اور یہ جسم کے ہر سیل میں ہوتا ہے۔ 125 گرام وزن کے کیلے میں 450 ملی گرام
पोटेशियम मौजूद होता है, जिससे बोन्स यानी हड्डियाँ भी स्ट्रॉन्ग रहती हैं। बनानाज में सॉल्ट कम और पोटेशियम की ज़्यादा मिकदार ब्लड प्रेशर को नॉर्मल रखने के लिए एक बेस्ट कॉम्बिनेशन है। एक्सपर्ट के मुताबिक केले में मौजूद एक उनसर ट्राइप्टोफैन ऐसा प्रोटीन है जो इंसान को ज़हनी सुकून पहुंचाता है और जिससे इंसान का मूड भी बेहतर रहता है। इसमें मौजूद आयरन जिस्म में हीमोग्लोबिन में इजाफा करता है, जिससे खून की कमी दूर होती है। बच्चों, बनाना के इतने बेनिफिट्स हैं कि टमाटर के बाद दुनिया में सबसे ज़्यादा खाए जाने वाला फल जो है वो केला है। ये थी आज की न्यूज़। जज़ाकल्लाह खैरा शामिर भाई, आपने हमें बहुत अच्छी खबर सुनाई। अल्लाह पाक आपको मज़ीद से मज़ीद बरकतें अता फरमाए। तो मदनी चैनल के नाज़रीन, बढ़ते हैं अपने अगले सेगमेंट की जानिब, जिसका नाम है बुज़ुर्गों की तारीख़। बच्चों की शाम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं ज़करिया भाई, ठीक हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अला कुल्ली हाल। आप कैसे हैं हसन भाई? अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अला कुल्ली हाल। ज़करिया भाई, आज आप कौन से बुज़ुर्ग के बारे में हमें बता रहे हैं? आज मैं एक बहुत ही मशहूर बुज़ुर्ग काजी इयाज़ मालिकी रहमतुल्लाहि ताला अलैहि के बारे में। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। जी ज़करिया भाई। तो प्यारे बच्चों और मदनी चैनल के नाज़रीन, आज हम अपने बुज़ुर्गान दीन में से जिन बुज़ुर्ग रहमतुल्लाहि ताला अलैहि का तज़किरा सुनने जा रहे हैं, उनकी वैसे तो बहुत सारी क्वालिटीज़ हैं, लेकिन वो एक बहुत बड़े आशिक़े रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम भी हैं और वो उलमा इकराम में बहुत ज़्यादा फेमस हैं। प्यारे बच्चों और मदनी चैनल के नाज़रीन, आज हम बात करेंगे काजी इयाज़ मालिकी रहमतुल्लाहि ताला अलैहि के बारे में। काजी इमाम अबुल फज़ल इयाज़ मालिकी रहमतुल्लाहि ताला अलैहि एक बहुत बड़े राइटर हैं और आप रहमतुल्लाहि ताला अलैहि एक तारीख़ निगार यानी हिस्टोरियन भी हैं। इसके साथ साथ आप रहमतुल्लाहि ताला अलैहि को हदीस पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का बहुत ज़्यादा इल्म था। प्यारे बच्चों और मदनी चैनल के नाज़रीन, काजी इयाज़ मालिकी रहमतुल्लाहि ताला अलैहि की एक बहुत ही प्यारी किताब है जो कि पूरी दुनिया में मशहूर हुई है। उस किताब का नाम है अश्शिफ़ा बितारीफ़ी हुकूक़िल मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। इस किताब में आप रहमतुल्लाहि ताला अलैहि ने प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की प्यारी लाइफ की प्यारी प्यारी और अच्छी अच्छी बातें जमा की हैं। प्यारे बच्चों और मदनी चैनल के नाज़रीन, क्या आपको पता है कि एक हमारा मदनी चैनल पे प्रोग्राम भी आता था जो कि इसी किताब से होता था, जिसका नाम था दरसे शिफा शरीफ, जो कि हमारे मुफ्ती हसन साहब किया करते थे। प्यारे बच्चों और मदनी चैनल के नाज़रीन, काजी इयाज़ मालिकी रहमतुल्लाहि ताला अलैहि की एक बहुत ही ख़ास बात यह है कि आप रहमतुल्लाहि ताला अलैहि एक बहुत ही ज़बरदस्त कारी भी थे। इसके साथ साथ आप रहमतुल्लाहि ताला अलैहि प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की प्यारी प्यारी सुन्नतें, इनका बहुत अदब करते थे और एहतराम करते थे और इन पर अमल भी किया करते थे। और प्यारे बच्चों और मदनी चैनल के नाज़रीन, काजी इयाज़ मालिकी रहमतुल्लाहि ताला अलैहि कभी भी हक़ बात कहने से नहीं डरते थे। आप रहमतुल्लाहि ताला अलैहि का इंतकाल 9 जमादुल उखरा को हुआ और आप रहमतुल्लाहि ताला अलैहि का प्यारा प्यारा मज़ार शरीफ मराकिश में है। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। ज़करिया भाई, अल्लाह आपको मज़ीद से मज़ीद बरकतें अता फ़रमाए। तो आएँ अपने प्रोग्राम में कुछ कॉल्स शामिल करते हैं। हलीमा नूर अतारिया जान से बात कर रही हूँ। मुझे आपका ज़िला बच्चों की शाम बहुत अच्छा लगता है। आज मैं आपको अरबी अल्फाज सुनाना चाहूँगी। पिस्ते को अरबी में फुस्तकुन कहते हैं, अखरोट को अरबी में जौज़ुन कहते हैं, किशमिश को अरबी में ज़बीबुन कहते हैं। किड्स मदनी चैनल हमारा मदनी। बिल्कुल बिल्कुल, किड्स मदनी चैनल हमारा मदनी चैनल। माशा अल्लाह। जी हसन भाई। माशाअल्लाह, आपने तो बहुत जल्दी सुना दिए और बहुत जल्दी याद कर लिया। माशाअल्लाह, आपने जवाब दिया कि पिस्ते को अरबी में फुस्तकुन कहते हैं, अखरोट को अरबी में जौज़ुन कहते हैं और किशमिश को अरबी में ज़बीबुन कहते हैं और आपके तीनों जवाब दुरुस्त हैं। माशाअल्लाह। तो आपको जब ये बहुत कुछ सीखने को आपको इस प्रोग्राम से मिल रहा है यानी बच्चों की शाम से, तो आप खुद भी इसे देखें और अपने रिश्तेदारों और अपने दोस्तों को ज़रूर इस प्रोग्राम की दावत दें। मैं मनसेरा से अब्दुल वासी बात कर रहा हूँ। मुझे आज के अरबी अल्फाज याद हो गए हैं। पिस्ते को अरबी में फुस्तकुन कहते हैं, अखरोट को जौज़ुन कहते हैं और किशमिश को ज़बीबुन कहते हैं। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। जी हसन भाई दुरुस्त। माशाअल्लाह, आपने कॉल की बहुत बहुत शुक्रिया और आपने कहा कि मुझे अरबी अल्फाज याद हो गए और आपको वाकई में अरबी अल्फाज याद हो गए। माशाअल्लाह, आपके तीनों जवाब दुरुस्त हैं। जी अगली कॉल। मेरा नाम मोहम्मद उस्मान है। मैं वाह कैंट से बात कर रहा हूँ।
हसन भाई, मुझे आपका शो बच्चों की शाम बहुत पसंद है। अल्लाह ताला आपको मज़ीद बरकतें अता फरमाए, आमीन। आमीन आमीन आमीन। अल्लाह पाक आपको भी मजीद से मजीद बरकतें अता फरमाए। जी अगली कॉल। नाम मोहम्मद तलहा है, मैं चकवाल से बात कर रहा हूँ। मुझे आपका सिलसिला बहुत अच्छा लगता है। मुझे अनस भाई की तिलावत बहुत अच्छी लगती है। अल्लाह ताला उनको मजीद बरकतें अता फरमाए। मैं आपको मदनी मकसद सुनाऊंगा। मुझे अपनी और सारी दुनिया के लोगों की इस्लाह की कोशिश करनी है इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल। जी अनस भाई, आपकी तारीफ की है इन्होंने। जज़ाकल्लाहु खैरा। आप इसी तरह मदनी चैनल देखते रहें, मदनी चैनल देखने की दावत भी आम करते रहें। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। किड्स मदनी चैनल, किड्स मदनी चैनल, माशा अल्लाह। अगली कॉल। आज के अरबी अल्फाज में से मैंने सीखा है कि अखरोट को अरबी में जौज़ुन कहते हैं। माशा अल्लाह माशा अल्लाह। जी हसन भाई। माशाअल्लाह, आपने जवाब दिया कि अखरोट को अरबी में जौज़ुन कहते हैं, और बाकी भी हमने सिखाए थे कि पिस्ते को अरबी में फुस्तकुन कहते हैं और किशमिश को अरबी में ज़बीबुन कहते हैं। माशाअल्लाह, आपने कॉल की बहुत बहुत शुक्रिया। आप ख़ुद भी मदनी चैनल देखें और मदनी चैनल देखने की दावत आम करें। बिलखुसूस ये वाला प्रोग्राम तो आप ज़रूर देखा करें। माशा अल्लाह माशा अल्लाह। तो मदनी चैनल के नाज़रीन, आए बढ़ते हैं अपने ज़िया भाई की तरफ, जो कि हमें वाक़या सुनाएंगे। तो आए अपने अगले सेगमेंट की जानिब बढ़ते हैं, जिसका नाम है वाक़या पहचानिए। बच्चों की शाम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे ज़िया भाई, आप ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। आप ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अला कुल्li हाल। ज़िया भाई, आज आप हमें कौन सा वाक़या सुना रहे हैं? जी हसन भाई और मदनी चैनल के नाज़रीन, हम आपको अपने प्रोग्राम में एक वाक़या सुनाते हैं, और आज का जो वाक़या है बड़ा ही खूबसूरत वाक़या है और सुनकर आपको बड़ा ही मज़ा आएगा। और वाक़या है हज़रत सैयदना बिशर हाफ़ी रहमतुल्लाहि ताला अलैह का। और वाक़या ये कि आप रहमतुल्लाहि ताला अलैह अल्लाह के बहुत बड़े वली थे, और विलायत से पहले आप शराबी थे। और एक मरतबा आप रहमतुल्लाहि ताला अलैह शराब की हालत में, नशे की हालत में कहीं से जा रहे थे कि रास्ते में आपको एक कागज़ मिला, और कागज़ को जब आप रहमतुल्लाहि ताला ने उठाया तो उस पर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम लिखा हुआ था। जब आप रहमतुल्लाहि ताला ने उसे देखा तो देखने के बाद उस पर इतर लगाई, इतर लगाने के बाद उसका अदब किया और ताज़ीम की नीयत से उसे बुलंद जगह पर रख दिया। जब ये हो गया तो उसी रात एक बुज़ुर्ग रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने ख्वाब में देखा कि कोई कह रहा है कि बिशर को जाकर बता दो कि उसने हमारे नाम का अदब किया, उसकी ताज़ीम की, उसको बुलंद जगह पर रखा, हम भी उसे पाक करेंगे। जब आप रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने ये ख्वाब देखा तो उन्होंने बोला कि बिशर तो शराबी है, शायद मुझे ख्वाब में कोई गलत फहमी हुई है। इतना कहने के बाद आप रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने 2 नफिल पढ़े। नफिल पढ़ने के बाद दोबारा सो गए। उसके बाद दूसरी और तीसरी बार भी यही ख्वाब आया, और साथ में ये भी कहा कि हमारा ये पैगाम बिशर को पहुंचा दो। जब आप रहमतुल्लाहि ताला ने ये सुना तो आप रहमतुल्लाहि ताला अलैह बिशर की तलाश में निकल गए। उस वक्त बिशर हाफ़ी शराब की महफिल में थे। जब उन्होंने वहाँ जाकर आवाज़ दी तो लोगों ने बताया कि वो तो शराब पी रहे हैं, शराब में मशगूल हैं। तो उन्होंने कहा कि किसी तरह उन्हें जाकर बता दो कि एक आदमी उनके लिए एक मैसेज लाया, एक पैगाम लेकर आया है। जब उन्हें जाकर बताया गया तो बिशर हाफ़ी रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने कहा कि उससे पूछो किसका पैगाम लाया है। जब उन्होंने आकर पूछा तो बुज़ुर्ग रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने कहा कि बिशर को जाकर बता दो कि वो अल्लाह का पैगाम लाया है। जब उनको जाकर बताया गया कि वो अल्लाह का पैगाम लाया है तो हज़रत सैयदना बिशर हाफ़ी रहमतुल्लाहि ताला अलैह खुशी से झूम उठे और नंगे पाँव वहाँ से बाहर तशरीफ़ लाए। और लाने के बाद जब आपको बताया गया कि आपके लिए ये पैगाम है तो आप रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने वो पैगाम सुना। पैगाम सुनने के बाद आप रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने सच्ची तौबा की और अल्लाह अज़्ज़ा वजल के बहुत बड़े वली बन गए। प्यारे बच्चों, ये था वाक़या। तो हमें भी चाहिए कि हम अल्लाह अज़्ज़ा वजल के नामों का अदब करें। कहीं भी कोई ऐसी चीज़ हमें मिल जाए तो हमें उसको उठाकर कहीं अदब के साथ किसी बुलंद जगह पर रख देनी चाहिए। हमारी दीनी किताबें होती हैं, स्कूल की किताबें होती हैं जिस पर अल्लाह अज़्ज़ा वजल का नाम होता है। हर एक किताब का अदब करना चाहिए। अल्लाह अज़्ज़ा वजल से दुआ है कि अल्लाह अज़्ज़ा वजल हमें बाअदब बनाए। आमीन बिजाहि नबील अमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। माशा अल्लाह। तो किड्स मदनी चैनल के नाज़रीन, जैसा कि आपने देखा कि हमारे ज़िया भाई ने बहुत प्यारा एक वाक़या सुनाया। तो ज़िया भाई, अल्लाह आपको मज़ीद से मज़ीद बरकतें अता फ़रमाए। जी, कुछ कॉल शामिल करते हैं अपने प्रोग्राम में। मेरा नाम मोहम्मद आमर रजा है। मैं बाबरिया कराची से बात कर रहा हूँ। हसन भाई, मैं आपको कल के अरबी अल्फाज सुनाना चाहूँगा। 21 तो
है तो शुरू ना देते हैं और 22 तो इस्लामी शुरू ना देते हैं, 23 तो सलासतुन शुरू ना देते हैं। जज़ाकल्लाहु खैर। किड्स मदनी चैनल हमारा मदनी है। बिल्कुल, किड्स मदनी चैनल हमारा मदनी चैनल। हसन भाई, इन्होंने कल के अरबी अल्फाज सुनाए कि 21 को अरबी में अहदुन व इशरूना कहते हैं, 22 को अरबी में इस्नानी व इशरूना कहते हैं और 23 को अरबी में सलासतुन व इशरूना कहते हैं। और माशाअल्लाह आपके जवाब दुरुस्त हैं। तो प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाज़रीन, जैसा कि आपने देखा कि हाँ, ये था हमारा आज का प्रोग्राम। तो आखिर में मैं आपको एक दावत देना चाहूँगा कि फ़रवरी का माहनामा फैज़ान मदीना वो आप बिल ज़रूर पढ़ें, क्योंकि उसमें बच्चों के लिए एक अलग पोर्शन बना दिया गया है और वालिदैन सुन रहे तो वो भी अपने बच्चों को पढ़ाएं। तो ये था हमारा आज का प्रोग्राम। जज़ाकल्लाहु खैरा। आप लोगों ने देखा। इंशाअल्लाह आपसे कल मुलाकात होगी। हमें दुआ में याद रखिएगा, अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। जज़ाकल्लाहु खैरा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। या अल्लाह तेरे जिक्र से ही दिन अपना हो तमाम, बच्चों की शाम, बच्चों की शाम, बच्चों का मदनी चैनल।